شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ سچ کہنے والے کے لیے ہمیشہ راحت ہے۔ حاتم روانہ ہوا اور کئی منزلوں کے بعد دامن کوہ میں پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ دریا خون سے بھرا ہوا ہے۔ حیران ہو کر ادھر چلا جدھر سے دریا آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بڑا سا درخت نظر آیا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ہر ڈالی میں انسانوں کے سر لٹک رہے ہیں۔ اس کے نیچے ایک تالاب لبالب بھرا ہوا ہے اور اس کا پانی جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ حاتم درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ لٹکے ہوئے سر بے اختیار قہقہے لگانے لگے۔ حاتم حیران ہوا کہ کٹے ہوئے سر ہنستے ہیں اور ان سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر اسی تالاب میں گرتے ہیں اور پانی خون آلود ہو کر دریا میں چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر اس سر پر پڑی جو سب سے اوپر تھا۔ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا دل میں ٹھان لی کہ اس بھید کو دریافت کر کے رہوں گا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ یہ کونے میں چھپ رہا۔ تمام سر ٹہنیوں سے چھوٹ کر تالاب میں گر پڑے۔ تالاب میں ایک بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس پر فرش بچھایا گیا اور ایک تخت زرعی رکھا گیا۔ پھر پریاں نکلی۔ ایک پری تخت پر بیٹھی۔ یہ وہی تھی جس کا سر سب سے اونچا لٹک رہا تھا۔ باقی پریاں کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ پھر ناچ شروع ہوا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو دسترخوان بچھایا گیا۔ تخت والی پری نے ایک خوان حاتم کے پاس بھجوایا۔ جو پری خوان لائی اس سے حاتم نے سردار پری کا نام پوچھا۔ وہ بولی کہ پہلے کھانا کھاؤ۔ جب کھا چکا تو وہ بولی کہ کل بتاؤں گی۔ جب صبح ہوئی تب تالاب میں کود پڑی اور پانی پر سرنمودار ہوئے اور خود ہی اچھل اچھل کر ڈالیوں میں لٹک گئے۔ پھر سب ہنس پڑے۔ حاتم سوچنے لگا کہ شاید یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ آخر شام ہو گئی۔ رات کو سر پھر تالاب میں گرے۔ پھر مجلس آراستہ ہوئی۔ آدھی رات کو دسترخوان بچا۔ حاتم کے پاس پھر ایک خوان بھجوایا گیا۔ اس نے پھر سوال کیا۔ ملکہ نے کہلوایا کہ پہلے کھانا کھا، بعد میں میرے پاس آ۔ حاتم نے کھانا کھایا اور اس پری کے ساتھ ہو لیا جو خوان لائی تھی۔ پری نے غوطہ مارا اور اسی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم نے پھر آنکھیں بند کر کے غوطہ مارا۔ جب پاؤں زمین پر لگے تو آنکھیں کھول کر دیکھا کہ نہ وہ تالاب ہے، نہ درخت، نہ پریاں، ایک لخدخ جنگل میں کھڑا ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ اسی حالت میں 7 روز گزر گئے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام حاتم کی مدد کو آئے۔ وہ سبز لباس پہنے ہاتھ میں عصا لیے حاتم کی داہنی جانب سے نمودار ہوئے۔ شفقت سے حاتم کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ حاتم کو فوراً سکون حاصل ہوا۔ پوچھنے لگا کہ پیر و مرشد یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کو صحرائے خبر پرس کہتے ہیں۔ وہ تالاب طلسم سے بنا ہوا تھا اور اس کا اثر یہی ہے کہ جو اس میں غوطہ مارے وہ یہاں آ پڑے۔ وہ جگہ یہاں سے 3 کوس دور ہے۔ حاتم نے کہا اب میں وہاں کیسے پہنچوں گا؟ انہوں نے کہا میرا عصا پکڑ لے اور آنکھیں بند کر لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ اب جو آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی جنگل ہے، وہی درخت، وہی سر ڈالیوں پر لٹکتے ہیں۔ حاتم بے اختیار ہو اس درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت ہلنے لگا اور بیچ سے پھٹ گیا۔ حاتم کمر تک اس میں سما گیا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام پھر پہنچے اور اپنا عصا درخت پر مارا۔ درخت موم ہو گیا اور حاتم اس میں سے نکل پڑا۔ بڑی دیر بعد ہوش آیا۔ حضرت خضر نے کہا اے حاتم تو کیوں اس مصیبت میں پڑا ہے؟ حاتم نے کہا اس راز کو دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ سردار شام احمر جادوگر کی بیٹی ہے۔ ایک دن شام احمر اپنی بیٹی سے بہت ناراض ہو گیا، لہٰذا اس کو طلسم کے دریا میں ڈال دیا۔ وہ سر جو سب سے اوپر ہے اسی لڑکی کا ہے۔ اس کا نام ملکہ زریں پوش ہے۔ جب تک شام احمر زندہ ہے یہ اسی حالت میں رہے گی۔ حاتم نے کہا میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت خضر نے اس درخت پر اپنا عصا مارا اور کہا اب اس پر چڑھ جا، یہ کہہ کر خود غائب ہو گئے۔ حاتم درخت پر چڑھ گیا۔ جب اس کا سر بھی دوسرے سروں کے برابر پہنچا تب اس کا سر بھی لٹکنے لگا اور تن تالاب میں گر کر ڈوب گیا۔ جب رات ہوئی تو سب سر تالاب میں گر پڑے اور جسم میں شامل ہو کر جمع ہوئے۔ پھر ملکہ تخت پر بیٹھی۔ حاتم کھڑا ہو گیا مگر بے ہوش تھا۔ ملکہ نے حاتم کو اپنے پاس بیٹھا لیا، کھانا کھلایا۔ حاتم بے خبر رہا۔ جب صبح ہوئی تو سب سر درخت پر جا لٹکے اور دھڑ تالاب میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ حضرت خضر پھر مدد کو آئے۔ حاتم کے سر کو اتارا، دھڑ کو تالاب سے نکالا۔ اس میں عزم بڑھا۔ حاتم کے تن میں جان آ گئی، جادو دور ہو گیا۔ حاتم حضرت کے پاؤں پر گر پڑا۔ حضرت نے کہا میں تجھے اس میں عزم سکھائے دیتا ہوں، تو ناپاکی سے بچ، روز نہایا کر، جھوٹ نہ بول، تمام دن روزے سے رہ۔ حاتم نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے اس میں عزم سکھلا کر کہا اب میرا عصا پکڑ لے اور آنکھیں بند کر لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ اب جو آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ نظر نہ پڑا، صرف ایک بڑا سا پہاڑ دکھائی دیا۔ حاتم اس پر چڑھنے لگا مگر پتھروں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ جلدی سے اس میں عزم پڑنے لگا، پاؤں پتھر سے چھوٹ گئے۔ حاتم سمجھ گیا کہ کوہ احمر یہی ہے۔ پھر تو اس میں عزم پڑتا ہوا چڑھ گیا۔ اتنے میں ایک میدان پرفضا نظر آیا۔ آگے بڑھا تو چشمہ پانی کا دکھلائی دیا۔ حاتم نے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہن کر اس میں عزم پڑنے لگا۔ اس کے اثر سے تمام جادو کے جانور بھاگ گئے۔ شام احمر کو اس کی خبر پہنچی۔ اس نے نجوم کی کتاب دیکھی تو معلوم ہوا کہ ایک دن حاتم تائی اس پہاڑ پر آئے گا اور تمام جادو بے اثر کر دے گا۔ لہذا ایک منتر پڑھنے لگا کہ حاتم اس میں عزم بھول جائے۔ چنانچہ ایک گول پریوں کا نمودار ہوا، ان میں ایک پری ملکہ زری پوش کی صورت تھی۔ شام احمر نے اس سے کہا کہ تم حاتم کو بے ہوشی کی دوا پلا دو۔ وہ پریوں سمیت اس چشمے پر جا پہنچی اور بولی اے حاتم، آج میرے باپ نے مجھے اس باغ کی سیر کو بلوایا اور تجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر بیٹھی اور ایک پیالہ بھر کر حاتم کو دیا۔ حاتم نے جو ہی پیالہ منہ سے لگایا وہ ایک سیاہ پوش دیو کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور حاتم کو باندھ کر شام احمر کے پاس لے گئی۔ شام احمر نے حاتم کو آتشی کنویں میں ڈلوا کر ایک لوہے کی سل کنویں کے منہ پر ڈھک دی۔ حاتم سوچ بچار میں گم چلا جاتا تھا مگر وہ مہرا ریچھ کی بیٹی کا اس کے منہ میں تھا، اس کی وجہ سے کنویں کی تپش کا اس پر اثر نہ ہوا۔ شام احمر کو خبر کی گئی کہ حاتم جل کر خاک ہو گیا۔ اس نے نجوم کی کتاب دیکھ کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے، حاتم ایک مہرے کی وجہ سے صحیح سلامت ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ وہ مہرا لینا چاہیے مگر مشکل یہ ہے کہ وہ زبردستی ہاتھ نہیں لگ سکتا، وہ خود ہی دے تو ملے۔ چنانچہ نوکروں سے کہا کہ حاتم کو کنویں سے نکال کر اسے چشمے پر لے آؤ۔ لہذا یہی کیا گیا۔ حاتم نے آتے ہی غسل کیا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ شام احمر نے منتر پڑھا۔ وہی نازنین ملکہ زری پوش کی صورت میں حاتم کے سامنے آئی اور بولی اب میں تیرے پاس نہ آؤں گی۔ اس روز تیرے قریب بیٹھی تھی تو میرے باپ نے سیاہ دیو بھیج کر تجھے پکڑوا لیا تھا۔ حاتم نے اس کو اپنے پاس بیٹھا لیا۔ تب وہ بولی اے حاتم، اگر تو مجھے سچ مچ چاہتا ہے تو ریچھ کی بیٹی کا مہرا مجھے دے دے۔ حاتم دینے ہی والا تھا کہ ایک پیر مرد نے ڈانٹا کہ اے نادان، مہرا دے گا تو جان سے بھی جاتا رہے گا۔ حاتم نے کہا اے بزرگ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تجھے اس میں عزم سکھایا تھا۔ حاتم ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ وہ بولے کہ یہ ملکہ زری پوش نہیں ہے، یہ تصویر جادو کی ہے، اس میں عزم پڑا۔ اگر ملکہ زری پوش ہے تو بیٹھی رہے گی ورنہ جل جائے گی۔ حاتم نے جو ہی اس میں عزم پڑھنا شروع کیا ان سب کا رنگ بدلنے لگا، بدن تھر تھرانے لگے اور ہر ایک کے سر پر ایک شعلہ پیدا ہوا
और वो शम्मा की तरह जलने लगी। फिर देखते ही देखते सब जलकर राख हो गईं। इधर जब शाम अहमर को इसकी खबर पहुंची तो उसने जादू से शैतान को बुलवाया और कहा कि हातिम ने बहुत परेशान कर रखा है। इब्लीस ने कहा, अभी उसकी उम्र बहुत बाकी है, बेहतर यही है कि तो अपनी बेटी उससे ब्याह दे। वो बोला कि ये तो मेरे जीते जी कभी ना होगा, तू इसमें आजम को हातिम के दिल से भुला दे। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि हजरत खिज्र उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि वो गाफिल सो जाए और उसी हालत में उसका पेशाब निकल जाए। ये सुनकर अहमर बहुत खुश हुआ। शैतान गायब हो गया और हातिम को गफलत में डालकर सुला दिया। उसी हालत में उसका पेशाब निकल गया। वो घबरा कर उठा और गुस्ल का कस्द किया, मगर जादूगर तो घात लगाया ही था। चुनांचे एक सियाह देव पैदा हुआ और हातिम को पकड़कर शाम अहमर के पास ले गए। उसने हातिम को बांधकर दो भारी सुतूनों से कस दिया। गर्ज 7 दिन गुजर गए। इतने में अहमर आया और कहने लगा, ऐ हातिम, अगर वो मोहरा मुझे दे तो मैं तुझे छोड़ दूं। हातिम ने कहा, तो अपनी बेटी मेरे साथ ब्याह दे। तो अभी देता हूँ। ये सुनकर वो गजबनाक हुआ और जादूगरों से कहा कि इसके सर पर पत्थर बरसाओ। चुनांचे उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। हातिम पत्थरों में छुप गया। तब जादूगरों ने अपने सरदार से कहा कि हातिम मर मिटा है। उसने कहा कि गलत कहते हो, वो जिंदा है। अगर यकीन नहीं तो पत्थरों को सरका कर देख लो। जादूगरों ने देखा तो हातिम को सलामत पाया। झुंझला कर फिर पत्थर बरसाने लगे। गर्ज 7 रोज इसी तरह गुजर गए। मजबूर होकर हातिम ने चौकीदारों से कहा, तुमने इस मोहरे का असर देखा कि मैं आग से न जला और न मरा। जो कोई मुझको इस तालाब में ले जाएगा उसी को ये मोहरा दूंगा। उन्होंने कहा, हमें नहीं चाहिए, मगर एक लालची ने कनखियों से इशारा किया कि मैं ले जाऊंगा। जरा रात होने दे। चुनांचे आधी रात हो गई तो वही चौकीदार हातिम के पास आया और जादू पढ़ने लगा। यकायक एक काला देव पैदा हुआ। वो उन दोनों को लेकर तालाब में पहुंचाकर गायब हो गया। हातिम ने कपड़े धोए, फिर नहाकर बदन पाक किया। अब जादूगर ने मोहरा मांगा। हातिम ने कहा कि देखो, जब शाम अहमर को मार डालूंगा तो यहाँ की बादशाहत तुझी को दूंगा। मोहरा न मांग, ये एक दोस्त की निशानी है। वो जिद करने लगा और गुस्से में जादू पढ़ने लगा। हातिम ने इसमें आजम पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा उसकी बरकत से वो भागकर अपने साथियों के पास आया और चुपका सो रहा। इतने में फज्र हो गई। सब जागे। हातिम को न पाकर डरे। लाचार खाक सर पर डालते शाम अहमर के पास आए और कहने लगे कि हातिम गायब हो गया। वो निहायत गुस्सा हुआ और इल्म नुजूम से दरियाफ्त करके कहने लगा कि हातिम उसी तालाब पर है और सरतक चौकीदार ने मोहरे की लालच में उसको वहां पहुंचा दिया है। लिहाजा आप सरतक को मेरे पास लाओ, मैं उसे जीता ना छोड़ूंगा। उधर वो अपनी अय्यारी से इस बात को दरियाफ्त करके भागा और हातिम के पास जाकर कहने लगा, तेरी वजह से मेरी जान जाती है। हातिम ने कहा, तो खातिर जमा रख। इधर शाम अहमर ने जो देखा कि सरतक भाग गया तो मंत्र पढ़ने लगा। इतने में सरतक को एक शोला दिखाई दिया। वो चिल्लाया, ए हातिम, मुझको बचा। हातिम ने इसमें आजम पढ़कर दम किया। शोला बुझ गया। फिर सरतक से कहा कि मेरे पीछे आकर खड़ा हो जा। हातिम इसमें आजम पढ़ता हुआ शाम अहमर के पास चला। जब अहमर को अपने इल्म से पता चला कि हातिम और सरतक इधर आ रहे हैं तो अपना तमाम लश्कर लेकर शहर से निकला और सहर पढ़ने लगा। यकायक काली घटा उठी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। सरतक कांपने लगा और बोला कि ये जादू है। हातिम ने इसमें आजम पढ़कर आसमान की तरफ फूंक दिया। वो सारी आफतें उसी के लश्कर पर जा पड़ी। हातिम आगे बढ़ा। अहमर जादूगर ने फिर एक सहर पढ़ा। एक पहाड़ जमीन से बुलंद हुआ। हातिम ने फिर इसमें आजम पढ़कर दम किया। वो पहाड़ संगरेजे होकर उन्हीं के सर पर जा पड़ा।
4000 जादूगर जहन्नम वासिल हुए। एक बड़ा सा पत्थर शाम अहमर के पास आया, मगर वो अपने जादू से बच गया। शाम अहमर ने जो देखा कि हातिम बढ़ा ही चला आता है, एक मंत्र पढ़कर फूका। 4 अजदहे पैदा हुए, लेकिन खुद उसके लश्कर पर जा गिरे और सबको निगल गए। सिर्फ 3 आदमी बाकी रहे। शाम अहमर ने फिर मंत्र पढ़ा। अजदहों ने निगले हुए लोगों को उगल दिया। ये देखकर 3000 जादूगर भागे। शाम अहमर ने उन्हें बहुत पुकारा, मगर वो ना आए। तब एक जादू ऐसा पड़ा कि वो सब के सब दरख्त होके मैदान में लग गए और आप अकेला हातिम के सामने आके मंत्र पढ़कर फूंकने लगा। जब देखा कोई असर नहीं होता, तो एक मंत्र पढ़कर आसमान की तरफ हवा हो गया। सर तक बोला। अब वो अपने उस्ताद कमलाक जादूगर के पास गया है। हातिम ने कहा, अब मैं कोहे कमलाक जाना चाहता हूँ। सर तक ने कहा, मैं भी गुलामी में हाजिर हूँ। ये दरख्त जो नजर आ रहे हैं शाम अहमर के लश्कर के लोग हैं। अगर हो सके तो इनको असली सूरत में लाकर साथ ले चलें। हातिम ने पानी पढ़कर सर तक को दिया और कहा कि इस पानी को इन पर छिड़क दो। सर तक ने पानी छिड़क दिया। अल्लाह की फजल से सब अपनी असली सूरत में वापस आ गए और हातिम के पांव पर गिरकर कहने लगे कि आज से तेरे गुलाम है। अब कहाँ का इरादा है? हातिम ने कहा कि मुझे शाम अहमर से काम है। अगर तमाशा देखना हो तो मेरे साथ चलो। गर्ज हातिम उन सबको लेकर कमलाक की तरफ रवाना हुआ। वो सब उस तालाब पर पहुंचे। वो पहली मंजिल थी। उन्हें खबर न थी कि अहमर भी इसी राह से गुजरा है और तालाब पर भी सहर पड़ गया है। सबने पानी पी लिया। पीते ही नाव से खून का फव्वारा जारी हो गया। किस्सा मुख्तसर तमाम रात गुजर गई। हातिम प्यासा रहा, एक कतरा भी न पिया। सुबह को वो सब मुश्क की तरह फूल गए। इतने में हातिम को ख्याल आया कि शायद इसमें आजम की बरकत से ये लोग अच्छे हो जाएं। चुनांचे इसमें आजम पढ़कर उन पर फूका। सूजन उतर गई। दूसरी बार फिर पढ़कर दम किया तो उनकी नाफों से नीला पानी जारी हो गया। गर्ज तीसरी बार अपनी असली हालत पे आ गए और हातिम को दुआएं देने लगे। हातिम ने तालाब पर भी इसमें आजम पढ़कर फूका। पहले वो जोश में आया, फिर सुर्ख होकर सब्ज होते ही नीला हो गया, फिर यकायक साफ हुआ और अपनी असली रंगत पर आ गया। हातिम समझ गया कि अब जादू का असर जा चुका है। थोड़ा सा पानी पिया और सबसे कहा, पियो और नहाओ। इधर शाम अहमर जो भागा तो कमलाक की ड्योढ़ी पर आकर दम लिया। कमलाक ने हाल पूछा। उसने कहा कि हातिम ने मुझे इन हालों को पहुंचाया है। कमलाक ने एक मंत्र पढ़कर अपने पहाड़ की तरफ फूंका। फौरन एक आग नमूदार हुई और उस पहाड़ को घेर लिया। हातिम भी 2-4 रोज में वहां जा पहुंचा। आग देखकर उसने इसमें आजम पढ़कर पहाड़ की तरफ दम किया। आग बुझ गई। कमलाक को जो ये मालूम हुआ तो उसने जादू ऐसा किया कि पहाड़ के गिर्द एक दरिया पैदा हो गया और मौजे मारता हातिम की तरफ बढ़ा। हातिम ने फिर इसमें आजम पढ़कर फूंका। दरिया हवा हो गया। कमलाक ने एक मंत्र और पढ़ा। पढ़ते ही बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। पहाड़ के गिर्द एक और पहाड़ हो गया। हातिम बैठ गया और इसमें आजम पढ़ने लगा। उसकी बरकत से एक ऐसी हवा चली, उन पत्थरों को उड़ाकर ले गई। हातिम आगे बढ़ा और कमलाक ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो पहाड़ नजरों से ओझल हो गया। हातिम बैठ गया और इसमें आजम पढ़ पढ़ कर फूकने लगा। अल्लाह की फजल से 2-3 दिन के बाद वो पहाड़ फिर नजर आया। हातिम साथियों समेत पहाड़ पर चढ़ गया। जादूगरों ने शोर मचाया। तब कमलाक शाम अहमर समेत आसमान पर चढ़ गया, जो 3000 गज बुलंद था, और अपने लश्कर को उसके दरवाजे पर छोड़ा। हातिम शहर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि एक शहर सजा हुआ है। किस्म किस्म के मेवे और मिठाइयाँ करीने से रखी हुई हैं, लेकिन आदमी का कहीं नामो निशान नहीं। हातिम के साथी बेख्तियार खाने लगे। खाते ही सबके बदन सूज गए और नाक से खून बहने लगा। हातिम समझ गया कि इन चीजों पर भी जादू का असर है, लिहाजा पानी मंगवाया और इसमें आजम पढ़कर हर एक को पिला दिया। जादू का अमल बेअसर हुआ।
फिर सब ने दिल खोल कर खाया। हातिम अब जादू के आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो जमीन पर हवा में गेंद की तरह नजर आ रहा था, और इसमें आजम पढ़कर फूंकने लगा। आखिर वो गेंद टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा और बहुत से जादूगर जहन्नम वासिल हुए, मगर कमला और शाह महमर बचकर भागे। हातिम उनके पीछे चला। आखिर वो दोनों भी घबराकर पहाड़ से गिरे और पाश पाश हो गए। हातिम सजदे शुक्र बजा लाया, फिर सरतक को उस मुल्क का बादशाह बनाकर मलिका जरीपोश की तरफ रवाना हुआ। अब जो वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि न तालाब है न पानी, मगर वो दरख्त खड़ा है और तालाब की जगह एक शीश महल जगमगा रहा है। हातिम शीश महल में दाखिल हुआ और मलिका जरीपोश को तमाम वाकयात बताए। वो बाप के मरने की खबर सुनकर रोने लगी। सहेलियों ने तसल्ली दी। फिर हातिम और मलिका जरीपोश की शादी हो गई, मगर फौरन हातिम को मुनीर शामी से किया हुआ अपना वादा याद आया। लिहाजा उसने शहजादी को अपने वालिद के पास यमन भिजवा दिया और खुद शहरे खुर्रम की जानिब चल पड़ा। चंद रोज बाद एक शहर में दाखिल हुआ। वहां लोगों से पूछा कि ए साहिबों, वो कौन शख्स है जो कहा करता है कि सच कहने वाले के लिए हमेशा राहत होती है। उन्होंने कहा कि एक बूढ़े ने यही बात अपने दरवाजे पर लिखकर लगा दी है। हातिम ने उसका पता पूछा। वो बोले कि यहाँ से 9 कोस पर शहर खुरम है, वो वहीं रहता है। हातिम उसी तरफ रवाना हुआ। 3 पहर के बाद पहुंचा तो क्या देखता है कि एक आलीशान इमारत खड़ी है और उसके दरवाजे पर जली हरूफ में यही जुमला लिखा हुआ है। हातिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। मालिक मकान ने हातिम को अंदर बुलवाया। हातिम ने देखा एक जवान खुशरू मसनद से तकिया लगाए बैठा है। हातिम ने सलाम किया। वो उठकर बगल गिर हुआ। खाने के बाद साहिब खाना ने पूछा कि किस काम के वास्ते आना हुआ। हातिम ने उसे अपना नाम और आने का सबब बताया। फिर पूछा कि आपने दर दौलत पर ये जुमला किस लिए लगाया है। उसने कहा कि आज आराम कर, कल बताऊंगा। गर्ज हातिम रात वहां रहा। सुबह को कहने लगा कि इरशाद कीजिए। उसने कहा, ए जवान, इस शहर खुरम को आबाद हुए 700 बरस हो चुके हैं और मेरी उम्र 800 बरस है। जिस सूरत से मुझे तो अब देखता है, इसी शक्ल में उस वक्त भी था। मैं जुआरियों में मशहूर था। एक रोज निहायत तंग दस्त हुआ। रात हुई तो चोरी को निकला। आधी रात को कमन डालकर बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंच गया। सब सो रहे थे। मैं आगे बढ़ा और बादशाह के गले से गौहरे शब चराग उतार कर कमन के जरिए से बाहर आया। जब जंगल में गया तो क्या देखता हूँ कि एक दरख्त के नीचे बहुत से चोर बैठे हैं और चोरी के माल के हिस्से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि तू कौन है। मैंने सच सच उनसे कह दिया और गौहरे शब चिराग दिखा दिया। चोरों को लालच सवार हुआ और चाहते थे कि उसे मेरे हाथ से छीन ले कि इतने में एक शख्स गैब से पैदा हुआ और ऐसी हैबतनाक आवाज से ललकारा कि चोर भाग गए। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, तू कौन है। मैंने उससे भी सच सच कह दिया। वो हंसा और कहने लगा कि तूने सच कहा, इसलिए ये सब माल और गौहर शब चराग समेत मैंने तुझको बख्शा, लेकिन तू चोरी से तौबा कर। मैंने ये बात मान ली और जुआ खेलने से भी तौबा की। फिर उसने कहा, अगर जुआ न खेलेगा और चोरी न करेगा तो तेरी उम्र 900 बरस की होगी। ये कहकर चला गया। मैं उस माल मता के पुश्तारे को बांध कर अपने घर ले आया और आलीशान इमारत बनवाई। मोहल्ले वाले दुश्मन हो गए। कोतवाल से शिकायत की कि कल तक ये कौड़ी कौड़ी को मोहताज था, आज इस कद्र जरो नग्द कहाँ से हाथ लगा, जितना बड़ा महल बनाया। कोतवाल ने मुझे बुलवाया। मैंने उसके सामने भी सच बोला। वो मुझे बादशाह के पास ले गया। मैं उसके रूबरू भी जो बात सच थी कह दी। जान की कुछ परवाह न की।
ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि इसके सच्चेपन पर मैंने ये माल उसको दिया और इसका गुनाह भी बख्शा। बादशाह ने अपने खजाने से भी इतना कुछ दिया कि मैं माला माल हो गया। अगरचे मैंने बहुत खर्च किया, फिर भी मेरे पास बहुत कुछ है। उसी दिन अपने दरवाजे पर लिखकर लगा दिया कि सच कहने वाले के लिए हमेशा राहत है। हातिम कई दिन उसका मेहमान रहा, फिर रुखसत हुआ और शाहबाद का रास्ता लिया। वहां हुस्न बानो से मिला और तमाम वाकयात सुनाए। फिर सराय में मुनीर शामी के पास पहुंचा, उसे भी तमाम बातें बताई। रात को आराम किया। सुबह को हुस्न बानो के पास आया। हुस्न बानो ने कहा कि ऐ हातिम, सुनने में यूं आया है कि एक पहाड़ से आवाज आती है, इसी वास्ते उसका नाम कोहे निदा रखा गया है। अब उसकी खबर ला कि वहां आवाज करने वाला कौन है और पहाड़ के उधर क्या राज है। हातिम ये सुनकर रुखसत हुआ और सराय में आकर मुनीर शामी से कहने लगा कि अब मैं कोहे निदा की खबर लाने जाता हूँ। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।